हेलो गाइस, व्हाट्सअप। आई होप यू ऑल गाइस आर गुड। हम लोग अक्सर कंप्यूटर का यूज किया करते हैं। आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर से ही रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है कंप्यूटिंग। कंप्यूटिंग को सिंपल वर्ड में समझा जाए तो इसका मीनिंग होता है कैलकुलेशन। मतलब कंप्यूटर के अंदर कंप्लीट प्रोसेसिंग को कंप्यूटिंग कहा जाता है। आइए समझते हैं कंप्यूटिंग का क्या मतलब होता है। एनी गोल ओरिएंटेड एक्टिविटी रिक्वायरिंग बेनिफिटिंग फ्रॉम और क्रिएटिंग कंप्यूटर। थस कंप्यूटिंग हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सिस्टम का वाइड रेंज ऑफ पर्पज के लिए डिजाइन और बिल्ड करना इंक्लूड करता है। एग्जाम्पल: processing, structuring and managing various kinds of information, doing scientific studies, making computer system behave intelligently, creating and using communication and entertainment media, finding and gathering information relevant to any particular purpose and so on. आइए समझते हैं सब डिसिप्लिन ऑफ कंप्यूटिंग फील्ड। The first one is computer science. Second है computer engineering. Third है information system. Fourth है information technology. And last है software engineering. आइए समझते हैं computer science. Scientific and practical approach to computation and its application. It is a systematic study of the feasibility, structure, expression and mechanization of the algorithm that underline the acquisition, representation, processing, storage, communication of and access to information, whether such information is encoded in bits and bytes in a computer memory. आइए समझते हैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग, a discipline that integrated several fields of electronic engineering and computer science and software. Computer engineers are involved in many hardware and software aspects of computing, from the design of individual microprocessor, personal computers and supercomputer to circuit design. Next is information system. Study a complementary network of hardware and software that enterprises employs or individual uses to collect, process, create, store and distribute data. Information system also refers to not only information and communication technology that an enterprise uses, but also to the way in which staff, customers and vendors interact with ICT to facilitate business processes in an integrated manner. Next है information technology. Application of computers and telecommunication to store, retrieve, transmit and manipulate data in for processing of information in enterprises. It encompasses not only computers and computer networks but also other information distribution technology such as television, telephone, radio, etc. Next is software engineering. Application of systematic, disciplined and quantifiable approach to the design, development and operation of software and the study of these approaches, which is primarily the application of engineering to software. आइए समझते हैं what are the computing technologies. First है server. From a hardware perspective, a server is a computer or device on a network dedicated to run one or more services to serve the need of the users of the other computers on a network. आइए समझते हैं क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर्सपेक्टिव, मतलब सॉफ्टवेयर पर्सपेक्टिव. A server is a computer program running to serve the request of other program, the client. Thus, the server performs some computational tasks on behalf of clients. आइए समझते हैं टाइप्स ऑफ सर्वर. फर्स्ट है फाइल सर्वर. यह एक कंप्यूटर और स्टोरेज डिवाइस होता है जो फाइल्स को स्टोर करने के लिए डेडिकेटेड होता है. कोई भी यूजर सर्वर पर फाइल्स को स्टोर कर सकता है. नेक्स्ट है प्रिंट सर्वर.
यह कंप्यूटर एक या एक से अधिक प्रिंटर्स को मैनेज करता है। नेक्स्ट है नेटवर्क सर्वर। यह कंप्यूटर नेटवर्क ट्रैफिक को मैनेज करता है। डाटाबेस सर्वर, यह कंप्यूटर डाटाबेस क्वेरीज को प्रोसेस करता है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन सर्वर। यह एक प्रोग्राम है जो सभी एप्लीकेशन ऑपरेशन को यूजर्स एंड डाटाबेस के बीच हैंडल करता है। एंड लास्ट है वेब सर्वर। वेब सर्वर कंप्यूटर होता है जो वेब पेजेज डिलीवर करता है। प्रत्येक वेब सर्वर का एक आईपी एड्रेस और एक डोमेन नेम होता है। एग्जांपल, अगर हम एक URL ici.org अपने ब्राउजर में इंटर करते हैं तो यह वेब सर्वर को एक रिक्वेस्ट सेंड करता है जिसका डोमेन नेम होता है ici.org। सर्वर तब होम पेज नेम को फेच करता है और ब्राउजर पर सेंड करता है। लास्ट है मेल सर्वर। मेल सर्वर कॉर्पोरेट नेटवर्क का मेल को मूव और स्टोर करता है। आइए कंप्यूटर की कंप्लीट आर्किटेक्चर को समझते हैं। आर्किटेक्चर का मतलब होता है कंप्यूटर की बनावट। द इंटरफेस बिटवीन अ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड इट्स सॉफ्टवेयर इज इट्स आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर डिस्क्राइब करता है कि कंप्यूटर इंस्ट्रक्शन क्या करेगा और कैसे वे स्पेसिफाइड होंगे। As a art, computer architecture specifies the relationship and parts of computer system. In computer engineering, computer architecture is the conceptual design and fundamental operational structure of a computer science. It is a technical drawing and functional description of all design requirements. It can be defined as the science and art of selecting, interconnecting hardware components to create computers that meets functional performance and cost goals. It includes three main categories. First है instruction set architecture, second है micro architecture and third है system design. Instruction set architecture, यह सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच एक ब्रिज है। ISA बेसिकली डील करता है कि चिप्स क्या करता है। बेसिकली ISA कंप्यूटर के प्रोग्रामिंग से रिलेटेड होता है। दैट इज हाउ द कंप्यूटर अंडरस्टैंड व्हाट ईच एलिमेंट इन इट्स बेसिक लैंग्वेज मीन्स, व्हाट इंस्ट्रक्शन टू बी कैरीड आउट एंड इन व्हाट ऑर्डर। आइए समझते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंस्ट्रक्शन सेट्स। फर्स्ट है कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर एंड सेकंड है रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। अगर कंट्रोल यूनिट कंट्रोल सिग्नल के सेट को जनरेट करने के लिए नंबर ऑफ माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स को कंटेन किए हों और प्रत्येक माइक्रो सर्किट माइक्रो कोड द्वारा एक्टिवेटेड हो, यह डिजाइन अप्रोच CISA डिजाइन कहलाता है। आइए समझते हैं रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट आर्किटेक्चर। अगर कंट्रोल यूनिट में सेपरेट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट हो जो सारे नेसेसरी सिग्नल को प्रोड्यूस करे तो प्रोसेसर के कंट्रोल सेक्शन के डिजाइन के इस अप्रोच को RISA डिजाइन कहते हैं। इसे हार्डवायर अप्रोच भी कहते हैं। एग्जांपल, IBM RS6000 MC88 प्रोसेसर। RISA प्रोसेसर स्मॉल और लिमिटेड नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन को यूज करता है और मोस्टली हार्डवायर कंट्रोल यूनिट को यूज करता है। यह लेस पावर कंज्यूम करता है और हाई परफॉर्मेंस को इंश्योर करता है। RISA प्रोसेसर CISA प्रोसेसर से फास्टर, लेस कॉम्प्लेक्स और लेस एक्सपेंसिव होता है। आइए समझते हैं माइक्रो आर्किटेक्चर। यह भी एक कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन होता है जो सिस्टम के लोअर लेवल डिटेल डिस्क्रिप्शन होता है, जो कंप्यूटिंग सिस्टम के सभी पार्ट्स के ऑपरेशनल को कंप्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए सफिशिएंट होता है। वे कैसे इंटरकनेक्ट होते हैं, वे कैसे इंटरऑपरेटेड होते हैं इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द ISA। माइक्रो आर्किटेक्चर कैन बी सीन एज हाउ द ISA डज व्हाट इट डज। चिप्स या प्रोसेसर पर अल्टीमेटली एवरीथिंग कैसे ऑर्गेनाइज होता है। लास्ट है सिस्टम डिजाइन। यह कंप्यूटिंग सिस्टम के अंदर ऑल ऑफ द अदर हार्डवेयर कंपोनेंट को इंक्लूड करता है, सच एज सिस्टम इंटरकनेक्ट, कंप्यूटर बसेस एंड स्विचेस,
memory controller, and CPU offload. Now there are two types of computing, cloud computing and mobile computing. आइए समझते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग। यूज ऑफ वेरियस सर्विसेज सच एज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म्स, सर्वर्स, स्टोरेज एंड सॉफ्टवेयर ओवर द इंटरनेट। आइए समझते हैं टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग इन्वायरमेंट। फर्स्ट है पब्लिक क्लाउड। दे आर एडमिनिस्ट्रेड बाय थर्ड पार्टीज और वेंडर ओवर द इंटरनेट and services are offered pay-per-use basis. Next है private cloud. Computing environment resides within the boundaries of an organization and is used exclusively for the organizational benefits. Next है community cloud. Sharing of computing infrastructure in between organizations of the same community. Example: all government organizations within India may store computing infrastructure on the cloud. And last, a hybrid cloud. It is maintained by both external and internal providers. They have to maintain their unique identity but are bound together by standardized data and application portability. आइए समझते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग आर्किटेक्चरल कंसिडरेशन। Component and subcomponent that typically consist of front-end platform, example client devices, computer network, and some acquired application, and back-end platform, example server, a cloud-based delivery and a network, example internet, intranet and intercloud. Theoretically, a cloud computing system can include practically any type of web application program, such as video games to application for data processing. Software development and entertainment resides on its individual dedicated server for services. There are some set of rules generally called as protocols, which are followed by this server, and it uses a special type of software known as middleware that allow computers that are connected on a network to communicate with each other. आइए समझते हैं सर्विस मॉडल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। फर्स्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। यह क्लाउड सर्विस का फाउंडेशन होता है। यह क्लाइंट को सर्वर हार्डवेयर, स्टोरेज, बैंडविड्थ एंड अदर फंडामेंटल कंप्यूटिंग रिसोर्सेज को एक्सेस करना प्रोवाइड कराता है। सर्विस डायनामिक स्केलिंग को इंक्लूड करता है, सो कस्टमर को मोर रिसोर्सेज की जरूरत हो तो ही कैन गेट देम ऑन द फ्लाई। नेक्स्ट इज सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। यह क्लाउड पर कंप्लीट सॉफ्टवेयर ऑफरिंग को इंक्लूड करता है। SaaS एक सॉफ्टवेयर डिप्लॉयमेंट का एक मॉडल है जहां एक एप्लीकेशन सर्विस की तरह होस्ट होता है जो इंटरनेट पर कस्टमर को प्रोवाइडेड होता है। नेक्स्ट है प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। यह क्लाइंट्स को बेसिक ऑपरेशनल सॉफ्टवेयर और ऑप्शनल सर्विसेज को एक्सेस करना प्रोवाइड कराता है, जिससे कि गूगल इंफ्रास्ट्रक्चर पर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को डेवलप और यूज किया जा सके। एग्जाम्पल गूगल एप्लीकेशन इंजन अलाउज क्लाइंट्स टू रन देयर वेब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो कि वेब ब्राउजर से एक्सेस किया जा सकता है, सच एज इंटरनेट एक्सप्लोरर ओवर द इंटरनेट। आइए समझते हैं नेटवर्क एज अ सर्विस। यह क्लाउड सर्विसेज के कैटेगरी में आता है जहां क्लाउड सर्विस को कैपेबिलिटी प्रोवाइड किया जाता है। यूजर को नेटवर्क ट्रांसपोर्ट कनेक्टिंग सर्विसेज को यूज करना होता है। नेक्स्ट, रिसोर्स एलोकेशन के ऑप्टिमाइजेशन को इन्वॉल्व किया होता है बाय कंसीडरिंग नेटवर्क एंड कंप्यूटिंग रिसोर्सेज एज अ होल। एग्जांपल मोबाइल नेटवर्क वर्चुअलाइजेशन, आई.ई. हॉटस्पॉट। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन एज अ सर्विस। कैश एक आउटसोर्स इंटरप्राइज कम्युनिकेशन सॉल्यूशन है जो सिंगल वेंडर द्वारा लीज होता है। द कैश वेंडर सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और गारंटेड क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑफर करता है। एग्जाम्पल वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंस्टेंट मैसेजिंग, कोलैबोरेशन एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशंस यूजिंग फिक्स्ड एंड मोबाइल डिवाइसेस। आइए नेक्स्ट कंप्यूटिंग समझते हैं, मोबाइल कंप्यूटिंग। यूज ऑफ
portable computing devices in conjunction with mobile communication technologies to enable users to access the internet and data on their home or work computers from anywhere in the world. मोबाइल कंप्यूटिंग इन्वॉल्व करता है मोबाइल कम्युनिकेशन, मोबाइल हार्डवेयर एंड मोबाइल सॉफ्टवेयर। आइए समझते हैं मोबाइल कम्युनिकेशन। इंफ्रास्ट्रक्चर पुट इन प्लेस टू इंश्योर दैट सीमलेस एंड रिलायबल कम्युनिकेशन गोज ऑन। यह डिवाइसेस को इंक्लूड करता है सच एज प्रोटोकॉल्स, सर्विसेज, बैंडविड्थ एंड पोर्टल्स नेसेसरी टू फैसिलिटेट एंड सपोर्ट द स्टेटेड सर्विसेज। The signals are carried over the air to intended devices, जो similar kinds of signal को send और receive करने के में कैपेबल होता है। नेक्स्ट है मोबाइल सॉफ्टवेयर। मोबाइल सॉफ्टवेयर मोबाइल हार्डवेयर में रन करने वाला एक्चुअल प्रोग्राम होता है। मोबाइल हार्डवेयर मोबाइल एप्लीकेशन के रिक्वायरमेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स को डील करता है। इट इज द ऑपरेटिंग सिस्टम ऑफ दैट अप्लायंस। मोबाइल कंप्यूटिंग इज इनेबल्ड बाय यूज ऑफ मोबाइल डिवाइसेस। आइए समझते हैं मोबाइल कंप्यूटिंग कंसर्न्स। मोबाइल कंप्यूटिंग हैज इट्स फेयर शेयर ऑफ सिक्योरिटी कंसर्न्स एज एनी अदर टेक्नोलॉजी। डेंजर ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन, पावर कंजप्शन। When a power outlet or portable generator is not available, mobile computer must rely entirely on battery power. A last of potential health hazard. सो यह था कंप्लीट कॉन्सेप्ट कंप्यूटिंग का। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए बी सेफ एंड बी केयरफुल। गुड बाय एंड थैंक यू।